आपने ग्रेजुएशन कौन से विषय से किया? सर मैथ। मैथ। उसके बाद क्या किया आपने? सर आफ्टर 10+2 I have joined Indian Air Force, sir. Meanwhile in service, sir, I have completed my graduation. अच्छा, कितने दिन तक किया अभी जॉब आपने? Sir, it is now 13th running, sir. कितना? I have completed 12. I have completed 12 years, sir. 12। कहाँ कहाँ काम किया आपने? सर इंडियन एयरफोर्स में सर बेसिकली काम किया है। नहीं नहीं, इंडियन एयरफोर्स में कहाँ पदस्थापित थे आप? सर आई वाज पोस्टेड एट सर जोधपुर, अंबाला एंड देन नाउ इन सर गुवाहाटी, सर। जोधपुर। आप जोधपुर का जो सिग्निफिकेंस बताइए, जोधपुर में आप वहाँ रहे, इंडियन एयरफोर्स के दृष्टिकोण से जोधपुर में क्या क्या चीज़ें हैं? Basically, sir, Jodhpur is a primary institute of Air Force in the SWAC command, sir. It was the biggest Air Force base of the SWAC command, sir. It has a significant aircraft was posted at there, as well as the significant missile was there, sir. Due to security reason, I cannot tell you the names, but it was ATDC control of the Indian Air Force in the western sector, sir. इंडियन एयरफोर्स भारत में कब इस्टेब्लिश हुआ था? In 1932, sir. उस As समय a Royal Air Force, Royal Indian Air Force. अच्छा, आप बताइए कि इंडियन एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है? सर नव स्पर्श दीप्तम। अच्छा, अभी एयरफोर्स में एक विमान भी आया और हमारा पहले से भी सुखोई 30 विमान था और अभी राफेल आया। इन दोनों के तकनीक में क्या अंतर है? इन दोनों के सर काइंडली सर टेक्निक्स में, इसके जो एयरक्राफ्ट की जो टेक्निक है, तकनीकी में क्या परिवर्तन आया? कैसे इसको सुखोई 30 से भी ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है? सर बेसिकली रडार है सर सेवरल एडवांटेज, सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर इट्स मीडियम लाइट एंड मल्टी रोल कैपेसिटी, सर। सेकंड वन सर इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग different type of missiles and bombers, sir. Like it has advantage to carry sir hammer and Meteor missile, which is sir very highly dangerous in killing, sir. And third one sir, it has upgraded with the high capability of early warning system, sir, as well as the radar system is now upgraded in the Rafale system, sir. So it is now as per the fourth generation aircraft, where Sukhoi has upgraded as a fourth generation, but it was basically a third generation aircraft. अच्छा, अभी जो रक्षा पर आप देख रहे हैं लगातार खर्च बढ़ता ही चला जा रहा है। यस सर। वैसी दशा में आप मुझे ये बताइए, भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, क्या रक्षा पर इतना ज़्यादा खर्च करना विकास को अवरुद्ध नहीं करता? सर if we see as a different perspective, sir, so I think sir it is also helpful in sir development, sir. Likewise sir, if we establish some PSUs for defense sector, sir, it will also create jobs. It is also create investment, sir, in the economy, sir. And second one thing, sir, no economy can be boosted without the security, sir. So security is a paramount for any boost of any development or growth, sir, for economy, sir. I think, sir. आप रूस से मंगाओ, आप फ्रांस से मंगाओ, अमेरिका से मंगाओ,
तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ कहाँ जनरेट हुआ? आप HAL से बनवाते तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती। Sir, if we see as a technology, sir, so we have to maintain, sir, our utmost level of technology, sir, also, sir, in a security level. But if we see in a Rafale, sir, we have 10 offset clause with the Rafale, which also help to invest in India, sir, and it will also make some job for the Indians. अच्छा, ये And बताइए, India is also focusing. आप इंडियन एयरफोर्स के किसी 3 अभियान के बारे में बताइए जो उल्लेखनीय रहा भारत की आप कहें पोस्ट इंडिपेंडेंस। 3 अभियान बताएं। Sir, first one is Operation Vijay, sir. ऑपरेशन Second, ऑपरेशन Operation विजय में Meghdoot. क्या हुआ था? Sir, it was during, sir, 1972 Pakistan war, sir. ऑपरेशन Indian Air Force has ऑपरेशन विजय में पाकिस्तान वाला था। sir, actually I am not forgetting, sir, about it, sir. Sorry, sir, I have not. I will go through it. गोवा का अधिग्रहण किया गया था। Sorry, sir. Thank you, sir. चलिए, कोई बात नहीं। आप बताइए मुझे, कानपुर में क्या है? एयरफोर्स के दृष्टिकोण से कानपुर का सिग्निफिकेंस बता। Sir, Kanpur has, sir, several BRDs, base repair depots for the N-32 radar, N-32 aircraft, as well as the, sir, there was also airman selection board, where recruitment was for the airmen, sir. आप एयरफोर्स के जो हायर से लेके लोअर तक के पद हैं उनका आप पद सोपान बताइए, क्रोनोलॉजिकल। For the officer, sir, or for airmen? ऑफिसर 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 Sir, our chief of staff is, sir, Air Chief Marshal, then Air Marshal, then Air Vice Marshal, then Air Commodore, Group Captain, Wing Commander, Squadron Leader, Flight Lieutenant, Flying Officer, sir. अच्छा, गुड। मुझे बताइए कि आपने सब्जेक्ट क्या लिया था इसमें? Sir, Public Administration, sir. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करो। Sir, basically, sir, public administration is so what that we cannot define in a one definition, sir. But as I am thinking, sir, it is basically coordinate, it making of the public policy, second execution of the policy, and by and large administration of the public, sir. No. Because it has. चलिए चलिए, पब्लिक सर्वेंट को जरा डिफाइन करिए। लोक सेवक किसको कहते हैं? Sir, basically, who is employed in a, sir, public administration or in a government service, sir. He will serve as a public. He will serve to the public. It is, he is called as a public servant, sir. अच्छा, भारत में कितने प्रकार की लोक सेवाएं हैं? Sir, इंडिया में, सर, 3 तरह के हैं, सर. फर्स्ट वन इज, सर, सेंट्रल सर्विस, सर. सेकंड इज, सर, ऑल इंडिया सर्विस, सर. थर्ड वन इज, सर, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज. अच्छा, ये ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या अंतर है? Sir, basically difference between the central service and all India service, sir. Both are recruited from the central services, but all India services works under state government, and they can deputed to the central government and the different time. But in the central services, they are largely working under the preview of central government. फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसको माना जाता है? सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर. वल्लभ भाई पटेल। पटेल का आधुनिक भारत में क्या योगदान है? Sir, the major contribution of Sardar Vallabhbhai Patel ji is unification of the India, sir.
At that time, when India was get the freedom from the Britishers, there was more than 500 provincials, and to unify them in a single India, it is I think it is a Herculean task, sir. So he made that successfully. And second thing, sir, the unification of the Hyderabad into the India and Junagadh by the police action, sir. It was also a tremendous job. Otherwise, it will make a new country, and it will make many hurdles in the near future, sir. अच्छा, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कैट भी एक आता है, कैट होता क्या? It is a central administrative tribunal, sir. Comes under 323A article of the Constitution. And sir, basically it will majorly a tribunal for the service term for the civil servants. Whatever the administrative challenges or whatever the cases for the civil servant, they can directly go to the civil administrative tribunals. अच्छा, ये प्राइमरी लेजिस्लेशन और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या अंतर है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सर. हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान कहते हैं उसको हिंदी में. Sir, in a primary legislation, the law will be made by the legislature, like parliament, sir. They will make, sir, basically a skeleton form, and rest of the form will be made by the executive, sir, in a detailed form. And in a, sir, delegated legislation, nowadays, sir, parliament has a very less time to form a new legislation. So it will delegate their power to the, sir, executive, sir. Basically, law will be made by the executive in a whole form, and it will passed by the parliament. अच्छा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? सर, गृह विभाग के अंतर्गत में, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत में. सर, आई वॉज नॉट, सर मुझे अभी पूरे याद नहीं है, बट मुझे कुछ याद है, सर. तो मैं बता सकता हूँ, सर. लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सर. सेकंड हो गया, सर, अपना हिंदी हो गया, सर. हिंदी लैंग्वेजेस. हिंदी लैंग्वेजेस विभाग का नाम क्या है? सॉरी सर, आई फॉरगेट, सर. राजभाषा. हाँ सर, राजभाषा. हाँ. एंड आप मुझे बताइए, मैं जो पूछना चाहता हूँ मैं उस पर आता हूँ. 14 तारीख बीत गया, 2 दिन पहले. क्या था उस दिन? यस सर. सर, हिंदी दिवस था, सर. हिंदी दिवस. और आप क्या हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है? अपने को पाते हैं? सर, मैं पूरी तरह से, सर, कंफर्टेबल हिंदी में. तो मैंने तो आपसे हिंदी में ही प्रश्न पूछे, आपने जवाब नहीं दिया. नहीं सर, मैं हिंदी में पूरी तरह से, सर, कंफर्टेबल हूँ, सर. आप जो चाहे पूछना चाहें. मैंने तो हिंदी में ही पूछ रहा हूँ, मैं आप अंग्रेजी में उसका जवाब दे रहे हैं. बिहार में, सॉरी सर, मैं हिंदी. बिहार में आप काम करना चाहते हो तो जनता के बीच में तो हिंदी में ही बोलनी होगी, इंग्लिश में तो होगा नहीं. यस सर. और जब मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो आपको हिंदी में ही जवाब देना चाहिए था. चलिए, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. अगला जो मेरा प्रश्न है वो ऑर्डिनेंस से संबंधित है. आप मुझे बताएं. भले मैं, चलिए, वो राजभाषा वाला पूछ रहा था. वो राजभाषा जो हिंदी के रूप में स्थापित मानी जाती है, राष्ट्रभाषा के रूप में क्या हिंदी को यह दर्जा प्राप्त है? नहीं है सर. हिंदी अभी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं. ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या? सर, जो राष्ट्रभाषा है, सर, वो बेसिकली स्टेट की ऑफिशियल, स्टेट की लैंग्वेज होती है, सर. लाइक जैसे स्टेट का अपना एम्बलम होगा, कोई स्टेट का अपना कोई झंडा होगा, उसी तरह स्टेट की कोई अपनी लैंग्वेज होगी, सर. और जो, सर, राजभाषा है, वो, सर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इंडिया की.
कि हमारा जो मतलब कार्यकारिणी है अपनी लोकसभा की, राज्यसभा की और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में की जा सकती है सर। इंडिया के पास सर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है अभी तक सर। अच्छा, ये बिहार की कितनी राजभाषाएं हैं? हाँ, बिहार की सर अभी मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ सर, बट मेरे हिसाब से सर, अगर मैं आप अनुमति दे तो मैं बताना चाहूँगा। हाँ, बताइए बताइए। सर एक हिंदी है और दूसरा उर्दू है। और तीसरा? तीसरा मुझे सर अभी सर 2 ही याद है मुझे सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है बताइए। सर उत्तर प्रदेश में तो सर हिंदी और उर्दू है। उर्दू है? यस सर। अच्छा। आप हाँ सर। आप लखनऊ स्टेशन गए? यस सर। स्टेशन, लखनऊ का स्टेशन जो है वो किन किन भाषाओं में लिखा हुआ है? सर 3 भाषाओं में लिखा हुआ है सर, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में सर। तो महोदय, जो राजभाषाएं होती है जिस स्टेट की, स्टेशन पे जो भी नाम लिखे होते हैं वो उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है सर। ठीक है, 3 लैंग्वेजेज हैं, बिहार के भी वही हैं और उत्तर प्रदेश के भी वही हैं। थैंक यू सर। ठीक है, मैं तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश के कंफर्म नहीं था। तीसरी वर्किंग लैंग्वेज है। अच्छा, ये बताइए, धारा 370 और 35A के समाप्त होने के बाद कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आया? सर आप कश्मीर सर पहले सर स्टेट था सर, अभी वो यूटी हो गया है सर, यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो अभी ये मोर मतलब अभी ये ज्यादातर सर ये अभी दिल्ली के समीप आ गया है कि दिल्ली की व्यवस्था ही इस पे लागू की है कि जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शासन किया जाएगा, परंतु जम्मू कश्मीर की अपनी एक लेजिस्लेचर भी होगी। तो मेरे हिसाब से सर अभी यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं लागू होंगी, अभी तो इनका कोई चुनाव हुआ नहीं है, परंतु जब चुनाव हो जाएगा तो जो इनके पास जो व्यवस्थाएं होंगी वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी और लैंड को छोड़ के बाकी सारी व्यवस्थाएं, सर्विसेज रूपी व्यवस्थाएं मुझे लगता है लेजिस्लेचर के पास जाएंगी। और अभी इसको बाइफरकेटेड कर दिया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। और तीसरा है सर, अब यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि सेंट्रल फंड से इसको डायरेक्ट फंडिंग की जाएगी। तो इसलिए राज्यों का जो प्रतिशत है 41% कर दिया गया है, 1% जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित किया गया है सेंट्रल फाइनेंस अपना जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो मूल रूप से जो ढांचा होगा सर वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली के करीब होगा सर। अच्छा, ये आपका पद का जो वरीयता क्रम है वो क्या है? पहला नंबर पर क्या दिया आपने? जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपका वो क्या सर? पोस्ट प्रेफरेंस में क्या दिया है? पहला वरीयता किसको दी? सर पहला सर्विस दिया सर बीएएस, दूसरा बीपीएस, तीसरा बिहार फाइनेंस सर्विस। अच्छा, ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ये कब गठित हुआ था, ये पता है आपको? सॉरी सर, इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे। अच्छा, ठीक है। ये किस लिए गठित हुआ? सर जो आर्म फोर्सेस के सर जो सर्विसेज टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आता है तो उसको आर्म्स ट्रिब्यूनल को रिफर किया जाता है। जैसे रिफर कर सकते हैं वहाँ के जो भी आर्म फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स को भी कुछ कर्टेल किया गया, ऐसा क्यों किया गया? सर इनको सर बेसिकली सर इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, लाइक आर्टिकल 19 हो गया या बहुत सारे अदर फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है उसके बीच भी आ सकते हैं। क्योंकि आर्मी में सर जो डिसिप्लिन और जो अपनी सिक्योरिटी है और जो सिक्रेसी है उसको बनाए रखने के लिए सर इन फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं रोकना जरूरी था। कहाँ चर्चा है इसकी? इसकी सर आर्टिकल 33 में है सर शायद। 33। अच्छा, एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल है,
ये किस लिए गठित हुआ? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, आर्टिकल 39 ए में इसकी चर्चा है। सर, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड्स टू एवरीबडी सर, और एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। लोगों को सर जो न्यायिक सुविधाएं हैं सर, इसके लिए उनको क्या क्या शर्तें कहते हैं? हैं, इसके लिए क्या शर्तें हैं, किनको दी जाएगी? सर ये मिड इनकम ग्रुप को सर देने का प्रावधान है, कि जिनकी इनकम, अभी इनकम का सर जो एग्जैक्ट फिगर वो तो याद नहीं, जो बट मिड इनकम फिगर में आते हैं उनको हम ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं सर। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविटीज अंदाजन मेरे हिसाब से सर 8 लाख या 10 लाख इसकी अपल। नहीं, उतना नहीं है। जुडिशियल एक्टिविटीज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये कहीं कार्यपालिका पर या विधायिका पर, न्यायपालिका का बढ़ता हुआ वर्चस्व के रूप में देखते हैं, या जनतंत्र के बैलेंस के रूप में देखते हैं? सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी सर मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर है जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव के बीच में आर्टिकल 50 के अंदर दी हुई है कि दोनों के बीच सेपरेशन रहना चाहिए। बट जब कभी भी सर कार्यपालिका अपने कार्यों में, कुछ कार्यों को करने में फेल हो जाती है और संज्ञान लेने में फेल हो जाती है, तो जुडिशरी के पास सर ये आर्टिकल 142 के अंतर्गत ये प्रावधान है सर कि वो उस कार्य को, कार्यपालिका को निर्देशित कर सकती है उस कार्य को करने के लिए। और इसके पास में सर कुछ अच्छे उदाहरण भी देखने को मिले हैं, जैसे हाईवे पे लिकर का बैन होना, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो अपने एस्पेक्ट थे वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए। तो मुझे लगता है सर ये एक अच्छा कदम है, परंतु मुझे लगता है सर कानून बनाना भी कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, तो उसमें इंटरफेरेंस ना करके उसको एक हम गाइडेंस के तौर पर देखें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। अच्छा, ये आजकल मीडिया ट्रायल बहुत चर्चा में है, ये मीडिया ट्रायल क्या है? बेसिकली सर जो अपना मीडिया है वो किसी भी केस की सुनवाई अपने स्टूडियो में अपने विशेषज्ञों द्वारा करने लगता है सर, और जो अपराधी घोषित ना भी हुआ हो उसको अपराधी घोषित कर देता है, या उसके तरफ एक प्रिजुडिस व्यू बना देता है, इसी को मीडिया ट्रायल कहा जाता है सर। कल इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी कुछ अपने वक्तव्य दिया, पढ़ा आपने, सुना? सॉरी सर, अभी वो मैंने पढ़ा नहीं है। पेपर पढ़ते हैं? बट जो पिछली सर सुप्रीम कोर्ट, हाँ सर पेपर अभी सुबह पढ़ूंगा सर। अच्छा, अभी पढ़ा नहीं कौन सा सर। पेपर पढ़ते हैं? सर इंडियन एक्सप्रेस सर पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर कौन है? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं है सर। आप किन खबरों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? सर अपना सर जो पॉलिटी रिलेटेड होता है सर, जो भारत की पॉलिटी से है और डिफेंस से रिलेटेड, उनको ज़्यादा वरीयता देता हूँ। अच्छा, बिहार के संबंध में कल प्रधानमंत्री ने कुछ घोषणाएं की थी, क्या प्रमुख घोषणाएं की? सॉरी सर, अभी वो मैंने पढ़ा नहीं है सर, अभी मैं उसको डिटेल में पढ़ नहीं पाया हूँ। अच्छा, मिशन कर्मयोगी की चर्चा बहुत किया प्रधानमंत्री ने, ये मिशन कर्मयोगी क्या है? सर मिशन कर्मयोगी सर, हाँ सर, ये बेसिकली सर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके अंतर्गत सर स्ट्रक्चरल चेंज लाने की बात कही है, स्ट्रक्चरल चेंज और बिहेवियर चेंज लाने की बात कही है मिशन कर्मयोगी में सर, कि उन्हें सर आज के मार्केट के मुताबिक बनाना है सर, कि जो भी आज का गवर्नेंस है उसके मुताबिक बनाना है, जो इनकी नए नए चैलेंजेस है एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको करने में वो सक्षम होने चाहिए, उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ानी है, इकोनॉमी बढ़ानी है, जो पब्लिक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सर जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी बढ़ाना है सर, इस बारे में उन्होंने बात कही है। इसके लिए उन्होंने सर जो ट्रेनिंग है एस्पेक्ट उसमें भी बदलाव करने की कोशिश की है, तो उन्हें सर नए सिरे से कई लेवल पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी सर।
अच्छा, आप लोग इतना परिश्रम करके पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीन तीन स्टेज पार करके सिविल सर्विसेज में आते हैं हम लोग। और सरकार जो है कुछ लोगों के लिए डायरेक्टली जो है अपर लेवल तक, वही सेक्रेटरी लेवल तक के चीज़ों को बना रहे हैं। कई प्राइवेट सेक्टर के लोगों को उन्होंने सीधी जो है नियुक्ति कर करके और पॉलिसीज़ मेकिंग में बैठा दिया। सिविल सर्विस के साथ इसको आप अन्याय देखते हो कि क्या समझते हो इसको? ये उचित कदम है? हाँ, मेरे हिसाब से सर ये उचित कदम है सर, क्योंकि सर आज का जो गवर्नेंस है, लाइक हमारा जो भी डिपार्टमेंट है, कई सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपने यहाँ इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए सर कि इंडस्ट्रीज है, तो सर अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पॉलिसी है, तो वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज के अगर जो भी अगर विशेषज्ञ अगर होंगे अंदर में, तो उसके विशेष क्षेत्र के लिए अच्छा एक कानून बना सकते हैं या पॉलिसी बना सकते हैं सर। तो मेरे हिसाब से ये सही कदम है सर। और इससे क्या है सर, टैलेंट जो हमारा है वो भी आ सकता है सर। बेसिकली इनको जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल में भर्ती किया जाएगा, तो होता क्या है सर कि जो आज के समय में जो प्रॉब्लम देखी गई थी कि जो हमारे अधिकारी होते हैं वो जब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बाउंड बाय रूल हो जाते हैं। तो हम एक इन्फ्यूजन कर सकते हैं अच्छे टैलेंट का, और इनोवेशन भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार भी है कि अगर वो अच्छा कार्य नहीं करते तो उनको हटाया भी जा सकता है। तो इस वजह से हमें लगता है सर इसमें बढ़िया होगा सर। अच्छा, ये बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम किए जा रहे हैं, और कृषि रोड मैप, इसके संबंध में आप जानते हैं? सॉरी सर, अभी मुझे पता नहीं सर। नहीं पता। मिशन 4.0 क्या है? पार्डन सर, मिशन 4.0। सर इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं, आप कहे तो सर अनुमान लगा सकता हाँ, हूँ। बताइए। सर ये बेसिकली न्यू इंडस्ट्री जो अपना इनोवेशन 4.0 है सर, उसके विषय में है सर ये। नहीं। अच्छा, बाघ उत्थान योजना। लाइक बाघ उत्थान योजना नाम सुना है? सॉरी सर, नहीं सुना। गंगा उद्दह योजना नाम सुना है? नहीं सर, सॉरी सर। जैविक कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है और चल भी रही है, काम भी चल रहा। ये जैविक कॉरिडोर क्या होता है? पार्डन सर, आवाज नहीं आ रही सर। जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा और उस पर बहुत जगह काम भी हो रहा था। जैविक कॉरिडोर है क्या? बेसिकली सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन कहाँ, कैसे, इसको, इसमें क्या प्रमुखता के साथ निर्णय लिए गए? सर इसमें जो क्लस्टर बेस्ड नीति अपनानी है सर, कि कई गांव का एक क्लस्टर बनाना है और उनको मतलब इस पे अपने उत्पाद के रिलेटेड जैविक खेती के लिए वो प्रोत्साहित करना है। जैसे कि जो मैन्योर है उसको यूज करना, कम से कम यूज करना अपना पेस्टिसाइड्स का, और उसका यूज करना। अच्छा, ये और जो है देसी किस्म इनोवेटिव जो स्टार्टअप है, इसमें बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो वो किन क्षेत्रों में काम करने की वजह से इनको ये प्राप्त हुआ, बता सकते हैं? इनोवेटिव, सॉरी सर, अभी मुझे आई कैन नॉट रिकॉल इट सर। कोई बात नहीं। कल जो परसों जो है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये कार्यक्रम चला है, और ये योजना में कुछ संशोधन हुए हैं। क्या संशोधन हुए?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। सॉरी सर, अभी मुझे संशोधन के बारे में पता नहीं। बिहार ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी नई श्रम नीति बनाई, तो ये नई श्रम नीति है क्या? रिसेंटली सर कोरोना को लेके, जो कोरोना मजदूरों को लेके जो श्रम नीति बनाई है, श्रम नीति बनाई, लेबर पॉलिसीज में बहुत बड़ा चेंजेस लाया। सर यूपी में तो जो किया है कि अभी अगर किसी भी स्टेट को अगर लेबर की जरूरत है तो यूपी में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसी भी इंडस्ट्री को, अगर यूपी में लेबर के लिए। नहीं, पॉलिसी उन्होंने कानून में परिवर्तन किया। हाँ सर, पॉलिसी में सर बेसिकली अभी पॉलिसी में तो अभी इन्होंने यही किया है कि जो हमारे माइग्रेंट मजदूर हैं उनको जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, उनको राज्य में ही अपना रोजगार दिया जा सके। नहीं वो तो ठीक है। दूसरा सर ये स्टार्टअप के लिए नया आप कंपनी लगाओ, यहाँ पे आओ, इसके लिए श्रमिकों की नीतियों में परिवर्तन किया। केंद्र सरकार ने भी कर दिया। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार, ये लोग पहले कर दिए। केंद्र सरकार ने अभी जो सेशन शुरू हुआ उसमें उसको अप्रूवल दिया। क्या है ये श्रम नीति, लेबर पॉलिसीज? उसमें सर जो गिग इकोनॉमी को बढ़ाने का जो कार्य है उसको किया गया है सर बेसिकली। नहीं पता। लाइक जो उनके। अच्छा कि चलिए, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी है सर क्रिकेट है, कुकिंग है सर, और डिफेंस न्यूज पढ़ना है सर। बहुत आपके पास हॉबी है भाई, आप बहुत वक्त मिल जाता है क्या आपको? बहुत सारी हॉबी बना लिया आपने, मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा नहीं सर, वक्त तो नहीं मिलता। अच्छा बताइए, कुकिंग में आपको क्या पसंद है? कुकिंग में सर इंडियन डिशेस बनाना पसंद है, नॉर्थ इंडियन डिशेस। आपके पसंदीदा डिश का नाम बताइए। सर शाही पनीर सर। शाही पनीर, ये शाही पनीर में शाही क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज सर ये जो बहुत ज़्यादा इनरिच है सर अपने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें जो भी प्रोडक्ट का यूज़ होता है वो मिल्क में बहुत ज़्यादा इनरिच होते हैं प्रोटीन में, इसीलिए इसे शाही पनीर कहा जाता है। अच्छा, ये इसका बताएंगे आप, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ शाही पनीर का? ये डिश कहाँ की है? जो सर शाही पनीर थी सर, बेसिकली जो शाही पनीर है सर वो अपना मध्य एशिया और इंडिया का इन्फ्यूजन है सर। ये फ्यूजन है, किसी कंट्री का नहीं है? हाँ सर, जो अपना सर। अच्छा, शाही पनीर के बनाने के लिए है तो अपने ओरिजिन कैसे इस्तेमाल इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है सर। जब मैं आपको प्रोसेस पूछता हूँ, कैसे शाही पनीर बनाते हैं? पार्डन सर, आवाज नहीं आ रही। शाही पनीर आप बनाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस क्या है इसकी? प्रोसेस तो सर ये है कि सबसे पहले आप इनमें सर जो बेसिकली ध्यान दिया जाता है वो मसालों के सर, और मसालों का, टेम्परेचर का और बर्तन का ख्याल किया जाता है कि बर्तन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अपना मोटी सतह का होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा जल्दी पके, मतलब चले ना मसाले। दूसरा टेम्परेचर मीडियम लेवल पे बनाते हैं। और जो तीसरा है सर, इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग तेल को गर्म करते हैं, उसमें जो अपने खड़े गरम मसाले हैं उनको डालते हैं, और उसके बाद सर हम क्या कहते हैं, प्याज को सर पीस के उसको फ्राई करते हैं ब्राउन होने तक, और उसके बाद सर हम उसमें टमाटर की प्यूरी डालते हैं, उसको पकाते हैं, फिर हल्दी और लाल मिर्च डालते हैं, और देन उसके बाद सर हम उसमें मिल्क ऐड करते हैं, और जब ये पक जाता है तो इसको जिसका जो वो प्योरी होती है उसको छान लेते हैं, और देन अगेन उसको एक बार गर्म करके उसमें पनीर मिलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको कुकिंग, आपकी जो कुकिंग है वो प्रशासन में क्या योगदान दे सकता है? सर बेसिकली सर अगर हम दृष्टिकोण की बात देखी जाए
तो भारतीय समाज में कुकिंग को सर महिलाओं से संबंधित देखा जाता है। अगर मैं एक पुरुष के तौर में एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं इक्वलिटी को प्रमोट करूंगा प्रशासन में। ये दूसरा सर क्या है कि कुकिंग में भी सर किसी काम को अच्छे से करना बहुत ही ज्यादा प्राथमिक होता है कि उसका जो एंड है उसको देखा जाता है कि खाना टेस्टी बना है कि नहीं। उसी तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जो कार्य है उसको भी हम देख सकते हैं कि ये अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। और एंड को पाने के लिए जो मीन है उसका होना बहुत जरूरी है कि जो हम मीन्स का यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हमने खाने को सही से नहीं बनाया तो उसका मीन अच्छा एंड नहीं अच्छा होगा। उसी तरह अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सर अगर सही तरीके से अपने इथोस का, एथिक्स का, मोरल का अगर पालन नहीं किया और कार्य क्षेत्र का पालन नहीं किया तो हम उस कार्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये दो सिमिलरिटीज लगती है सर। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है या देखना पसंद है? सर खेलना भी पसंद है सर, देखना भी पसंद है सर। मुझे ये बताइए कि अगर आप साउथ में चले जाएं, चेन्नई चेपक स्टेडियम चले जाएं और लॉर्ड्स में खेलें, दोनों के पिचों में बहुत अंतर पाया जाता। एक स्पिन का ट्रैक है तो एक कहीं आप फास्ट बॉलर का ट्रैक, तो ये कैसे संभव हो जाता है? सर प्लीज सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन सर, आई कैन नॉट। आप अगर साउथ में चले जाएं, चेपक स्टेडियम में चले जाएं और फिर अगर लॉर्ड्स में चले जाएं पिच पर खेले, दोनों के पिचों में बहुत अंतर है। तो एक जो स्पिन के लिए है तो दूसरा फास्ट के बॉलर के लिए ज़्यादा ये होता, बेनिफिशियरी होता। तो बताइए ऐसा कैसे हो जाता? सर जो ओवरऑल पिच की कंडीशन होती है सर वो कई कारकों पर निर्धारित होती है सर, जैसे कि वहाँ के मौसम के ऊपर। तो जो अपने साउथ इंडिया का मौसम है और जो इंग्लैंड का मौसम है वो दोनों डिफरेंट है सर। तो जो साउथ इंग्लैंड का मौसम है सर वहाँ पे मॉइस्ट ज़्यादा रहती है, जिससे क्या फास्ट बॉलर्स को वहाँ मदद मिलती है। जबकि साउथ इंडिया में अपना जो मौसम है वो कहीं कहीं ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिससे कि क्या होती है जो पिच होती है बहुत ही ज़्यादा सूखी हो जाती है और वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं। और उन क्रैक्स का मतलब जो फायदा होता है वो स्पिनर्स को काफी मिलता है, जिससे उन्हें टर्न कराने में अच्छी मदद मिलती है। और सर दूसरा सॉइल का भी अंतर है सर। जो अपना इंग्लैंड की सॉइल है वहाँ पे उससे क्या कहते हैं, वहाँ पे जो फास्ट बॉलिंग है सर वहाँ पे जो जब फास्ट बॉलर है तो उनको अच्छी बाउंस भी मिलती है। जबकि इंडिया में जो सॉइल्स है सर, जो खासकर जो साउथ इंडिया में उसमें जो सॉइल्स है उसमें बाउंस अच्छी नहीं मिलती है क्रिकेट में बनाने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है सर। अच्छा, ये जो पिच बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? पिच क्यूरेटर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? पिच क्यूरेटर। क्यूरेटर। अच्छा, भारत के किसी पिच क्यूरेटर का नाम बता सकते हैं? सॉरी सर ये नाम तो मुझे याद नहीं। कोई बात। अच्छा ये बताइए, आजकल बहुत गेंदों की चर्चा रहती है, नकल बॉल कहते हैं। नकल बॉल क्या होता है? सर बेसिकली जैसे एक ऑफ स्पिनर है वो क्या कहते हैं, अब नकल बॉल का यूज ज्यादा करते हैं। फिंगर स्पिनर्स के लिए बेसिकली ये यूज होती है सर, रिस्ट स्पिनर के लिए यूज नहीं होती नकल बॉल। ये नकल बॉल क्या स्पिनर फेंकते हैं? नहीं सर, फास्ट बॉलर भी फेंकते हैं सर। अच्छा। ये जैसे ये इसका जो यूज होता है सर, तो ये स्पिनर, ये जो फास्ट बॉलर है भारत में कौन नकल बॉल ज्यादा फेंकता है? भुवनेश्वर कुमार सर। अच्छा ये भुवनेश्वर कुमार हो गया, प्रवीण कुमार थे। अच्छा, ये दूसरा गेंद क्या होता है? कभी कभी कमेंटेटर सुनता हूँ ये बड़ी अच्छी दूसरी गेंद थी, ये दूसरी गेंद क्या होती है? दूसरा क्या होता है? सर बेसिकली सर इसमें जो स्पिनर्स होते हैं वो अपना जो गेंद है वो उसको दूसरी दिशा में सर टर्न कराते हैं। लाइक अगर एक ऑफ स्पिनर है तो अगर वो गेंद सीधी निकल जाए या अब लेग स्पिन की तरह से निकल जाए तो उसको दूसरी गेंद बोला जाएगा। बेसिकली सर इसमें बॉल को पकड़ने का तरीका चेंज हो जाता है और फिंगर्स की जो पोजीशन होती है वो भी चेंज हो जाती है बॉल पर। चलिए मैं समाप्त करता हूँ आपका साक्षात्कार।